ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਗੁਰਕੀਰਤ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ GBC ਅਪਡੇਟ। ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਨੇਚਰ ਫੈਸਟ 2024 ਦੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇੱਕ ਨਾਰੇ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਉੱਤੇ ਕੈਂਪੇਨ ਦਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਨਾਈਟ ਕੈਂਪੇਨ ਉੱਥੇ ਔਰਗਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ। ਨਾਰੇ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਕੋਲ ਸੋਇਲਲੈਸ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਵੀ DC ਮੈਮ ਵੱਲੋਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਭਜਨ ਦਾ ਵੀ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਿਮਿਕਰੀ ਪਲੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇੱਕ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸੋਇਲਲੈਸ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਉੱਤੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਜੇ ਨਾਰੇ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉੱਥੇ ਨਾਰੇ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਟੈਂਟਸ ਵੀ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ, ਬੋਨਫਾਇਰ ਦਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਵੀ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਡਿਨਰ ਵੀ ਔਰਗਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਸੀਗਾ ਜੀ ਉੱਥੇ। ਨਾਰੇ ਰੈਸਟ ਦੀ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇੱਕ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਓਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਉੱਥੇ ਸੀਗੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਨਾਰੇ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੈਗੀ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਡਿਟੇਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਆਫਿਸਰ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਰ ਸਰ, DC ਮੈਮ, ATC ਸਰ, DFO ਸਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਫੋਰੈਸਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਜੀ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉੱਥੇ ਕਾफ़ੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਾफ़ੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਉੱਥੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਨਾਈਟ ਸਪੈਂਡ ਲਈ ਕਾफ़ੀ ਵਧੀਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਆਫਟਰ ਮੋਰਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਟਰੈਕਿੰਗ ਹੋਈ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਵਾਚ ਟਾਵਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਡੈਮ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ। ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਪਰ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਦਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਸੀਗਾ। ਡਾਕਟਰ ਅਮਨਦੀਪ ਸਰ ਨੇ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਸੀਗਾ ਜੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਨੇਚਰ ਫੈਸਟ 2024 ਦਾ ਨਾਈਟ ਕੈਂਪ।
ਹਰ ਇੱਕ ਪਰਫਿਊਮ ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕੀ ਹੈ? ਸਮਥਿੰਗ ਜੋ ਨਵਾਂ ਹੋਵੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਪਰਫਿਊਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੇ ਲਾਓ ਤੇ ਖੁਸ਼ਬੂ ਹੀ ਖੁਸ਼ਬੂ, ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗਰਦਨ ਤੇ ਲਾਓ ਤੇ ਗੈਲ ਪੜਾਕਾ ਸੱਚ ਬਾਹਰ ਕਢਾਓ। ਗੈਲ ਪੜਾਕਾ? ਸਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਮੰਨਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਇੱਕ ਲਾਈਵ ਸੈਂਪਲ ਦਿਓ। ਇਹ ਗੈਲ ਪੜਾਕਾ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਸੈਂਪਲ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਆਡੀਅנס ਨੂੰ ਸੈਂਪਲ ਦਿਖਾ ਦਿਓ। ਲੋ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਸੈਂਪਲ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ ਬਿਨਾਂ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਕਰਦੇ ਬੁਲਾਨੇ ਆ ਸਾਡੇ ਐਮਐਲਏ पप्पू पेंचरा वाले जी नु। मेरे भाई और उनकी बहनों और प्यारे देशवासियों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, जब से हमारी सरकार आई है यहाँ कोई भी व्यक्ति बेरोजगार नहीं है। सबको सरकारी नौकरियां प्रदान की गई है और सबके खातों में 15 लाख रुपए जमा कर दिए गए हैं। हाँ, मेरा नाम तो रामविलास है और तो यूपी में गुंडागर्दी करता है और तो मेरे तो बलात्कार हो गया। गैल पड़ाका तेरे कोलो हो गया कि तेरे ते हो गया? मेरे ते हो गया जी। मैं तो पंजाब विच आया, पर पंजाब के लोग बहुत बुरे हैं। मनु भैया कहने से नहीं, तू तो गैल पड़ाका मिथुन चक्रवर्ती लगती है। इसकी जात का भैदा मार। ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਡੀਅנס ਨੂੰ ਛਿੱਤਰ ਮਾਰ ਕੇ ਕੱਢੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹੀ ਕੱਢ ਦਿੰਨਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕੋਈ ਗੈਲ ਪੜਾਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸੈਂਪਲ ਇੱਥੇ ਹੀ ਟਰਾਈ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀਏ। ਇਹ ਸੈਂਪਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ। ए गैल काली अपरचुनिटी का पड़ाका लग रहे हो। एक मिनट, मेरी वाइफ का फोन आ रहा है सर, मेरी वाइफ का फोन आ रहा है, मेरी जान काट देगी। हेलो, हाँ जी बेबी, बेबी मैं बाजार से सब्जी ले रहा, सब्जी आलू ले लो, प्याज ले लो, प्याज ले लो। बाबू नहीं, बाबू मिसअंडरस्टैंडिंग सी, मिसअंडरस्टैंडिंग। हाय मैं लुट्टी गई, बर्बाद हो गई। चार गल्ला मेरे नाल प्यार नहीं करते, तेनू शर्म आंदी आ? ਇਹਦੇ ਨਾਲ कर रहा है। बेबी मुंडा है, बंदा है। तुमने भी तेरी जनानी हो। बेबी बंदा है, ओ की ओहो ओ माय गॉड, किन्ने किया ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਨੂੰ? मैं नहीं आया, मैनू ले आया बाबू, मैं तो सब्जी ले रहा सन, मैनू ਮੈਨੂੰ नहीं ਨਹੀਂ ਸਮਝ पता। ਲੱਗਦੀ। ਚੱਲ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇ ਤੇਰੀ ਚੱਲ ਓਏ। और now we have to go, मैम का हुक्म है कैसी हो निकलिए, time is going, we are getting late, so performances हॉल बहुत में, गाने हॉल बहुत में सारे enjoy करेंगे, so दिख रही है ऐसे जैसे मिरर दो बर्ड्स हैं और लकी हो के ऐसे कैप्चर कर पाएगी। ये इसको मेडिटेटिव आउल कि सुबह सुबह जैसे हम उठते हैं तो उठते भागना शुरू हो जाते हैं,
तो अगर हम बर्ड्स को देखें, जैसे ही मतलब कि सनशाइन रहती है, सनशाइन में वो तकरीबन उनकी आँखें बंद रहती हैं, तो इनको मैंने फिर कैप्शन दिया मैग्नेटिक बाउल। तो ये हमारे तकनीकी ट्रैप कैमरा की फ़ोटो है। और ये हमारे इंटरनल विजिटर हैं। ये मतलब जैसे हम माइग्रेटरी बर्ड्स की बात करते हैं हमेशा, हम कहते हैं वाटर बर्ड्स। बहुत से प्लेन बर्ड्स भी आते हैं, जो मैं आपको एक दो दिखाऊंगा, यहाँ पर लगे हुए हैं। और ये जो बर्ड है ये इंटरनल माइग्रेटरी है, और इसकी आवाज़ जो है वो बहुत मतलब फ्रिक्वेंसी बहुत लाउड होती है और बहुत सुंदर होती है। इट्स वेरी हार्ड। इसका नाम है जी इंडियन पित्ता। तो और इसको पंजाबी में बोलते हैं नौरंगा। तो सबसे जो अच्छी बात यह है कि हमारे पंजाबी नेम हमें यही प्रेजेंट करते हैं कि हमारे बुजुर्गों को शायद इनके नाम मतलब पता थे कभी, क्योंकि ब्रिटिश लोगों ने पंजाबी नेम बनाए हैं। यहाँ मैम कुछ मैमल्स हैं, जैसे मंकी को भी देखते हैं तो नॉटी ही एक पिक्चर सामने आती है, लेकिन ये मैंने पोज कैप्चर किया था। इसको कई एग्जीबिशन में काफ़ी अच्छी एप्रिसिएशन भी मिली है कि उसको मदरहुड में कहता हूँ कि जब मतलब जो भी जानवर है हम उसको अपने हिसाब से देखते हैं, अपने विचारों के हिसाब से देखते हैं। तो ये सांबर डियर की तकनीक है। और ये लेपर्ड्स ऑफ, वैसे ये राजस्थान की फ़ोटो है, लेकिन होशियारपुर में मैंने लाइव खींचे, ये भी लाइव खींचा मैं 40 फीट से। तो ये बेड़ा राजस्थान की है। और सांबर का ये हमारे ट्रैप कैमरा की फ़ोटो तकनीकी है। तो लेट्स मूव फॉरवर्ड। ये मेरा जो है 11 जून 2018 का इनकाउंटर है जी, ट्रैक्टर के ऊपर डोंगी चौकी पागवाल की नज़दीक। तो 11:30 बजे के करीब मतलब ये 2018 की बात है। और जब ये हो गया था कि कैप्टन साहब ने ये ऑर्डर दे दिया था कि अगर ये ज़्यादा तंग कर रहा है तो आप इसको कर दो, रिमूव या पिंजरा लगा दो। तो मैं टेंट लगा कर वहाँ पर फर्स्ट टाइम रहा था और मैंने कहा था कि नहीं। और हमने संजय गांधी नेशनल पार्क से मिस्टर जयपॉल हैं, उनके साथ से स्प्रे होती है, वो मैंने वहाँ से मंगवाई। और रात को हमने इसके एरिया में स्प्रे करी। जब स्प्रे करते हैं वो भाग जाते हैं, तो तब वो स्प्रे करते करते बिल्कुल एकदम सामने आ गया। और मेरी ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन मोमेंट है कि 3 मिनट हम इसके साथ रहे। और गांव के जो सरपंच का बेटा था वो ट्रैक्टर चला रहा था। ये ट्रैक्टर के 12 फीट की दूरी है सर इसको कैप्चर करने के लिए। और जब मैं वापस गया तो मैंने बोला कि देखो सरपंच जी के बेटे ने देखा है, वो हार्मफुल नहीं है। वो कहते हैं डॉक्टर तो सदाई है, तो भी सदाई हो गया। लेकिन इसकी सबसे जो मेरी ज़िंदगी का मतलब मेमोरेबल मोमेंट है कि ये आ गया सर वहाँ पर पूरे गांव के सामने बैठा, और 45 सेकंड हम लोगों ने इसकी वीडियो बनाई। उसके बाद चला गया, फिर वापस नहीं मिला। फिर चंडीगढ़ से भी टीम आई, पटियाला से भी टीम है लेपर्ड को देखने के लिए, लेकिन नहीं मिला। मतलब ये ऐसा जानवर है, हम कहते हैं ना अगर मुझे कोई लाख रुपये मैम दे दें तो मैं दिखा नहीं सकता। और इसकी एक खूबी है इस जानवर की, हम जब ये 100 टाइम हमें देख लेता है तो ये खुद डिसाइड करता है कि मैंने किसी को दिखना है या किसी को नहीं दिखना। और जब ये हम कहते हैं ना जब लेपर्ड दिखा तो उसने आपके ऊपर वो मतलब कि अटैक क्यों नहीं किया। जब वो दिखता है ना तो उसका मूड होता है कि अटैक नहीं करना है, जिस पर अटैक करना है उसको दिखता नहीं है। ये मतलब जंगल की थ्योरी है, जंगल का ज्ञान है जो मैंने इन चीज़ों से सीखा है। तो ये है बाकी डियर। तो जब मैं जंगल में जाता तो बड़ा हैरान था, मैं क्या यहाँ पर मैम एक और चीज़ है, जब मैं बचपन में इन जंगलों में घुमा हूँ तो यहाँ पर हाइनाज रहे, लकड़बग्गे और बाकी डियर मैंने खुद देखे। लेकिन अब क्या है, लकड़बग्गे डेंसिटी खत्म होगी जंगलों की और हिरणों का तो शिकार हो गया, लकड़बग्गे डेंसिटी की वजह से कम होते चलेंगे। तो जब वो भौंकते थे थोड़ा बहुत पता चलता था, लेकिन मैंने सोचा पता नहीं कौन भौंकता है, ये बाकी डियर है, ये मतलब डॉग की तरह भौंकता है। हाँ, और ये मेल है, मेल की यही निशानी के इसके सींग होते हैं। ये ट्रैप कैमरा की फोटो है तकनीकी, और ये मेरी लाइव है, क्योंकि इसको जैसे मैं बैठा हूँ पक्षियों को खींचने के लिए, पीछे से आहट हो रही है और मुझे कर्म चाल से पता चल गया कि ये है तो हिरणी। धीरे आया और मैंने बिल्कुल धीरे धीरे टर्न किया, और इसके आप देखोगे ये थोड़ा सा ना मतलब सोच में आया कि क्या है। और जैसे ही मेरे कैमरा की क्लिक हुई, इसने दूसरा शॉट नहीं दिया मुझे, मतलब 12 फीट का जब भाग गया। मतलब एवरी फोटो हैव ए स्टोरी बिहाइंड। और ये हमने किसी के घर से पकड़े थे जी, इन्फॉर्मेशन मिली थी, जिसका कंजर्वेशन में काम करते हैं जयपाल है मैंने गिद्दड़। तो ये फिर हमने डिपार्टमेंट को हैंड ओवर कर दी थी। तो मतलब इनका एक अमेजिंग संसार है। हमारे अगर बच्चे यहाँ हम जैसे करते हैं, कैंपिंग करते हैं, ट्रैकिंग करते हैं, लेकिन हम अगर कनेक्ट कर पाए ना, सब हमारा कनेक्शन मिस है। हम जंगल में भी जाते हैं ना मैम, हम लग्जरी ढूंढते हैं। हम जंगल में भी जाते हैं, वहाँ भी देखते हैं कि खाने को क्या है, पीने को क्या है, वो तो सब कुछ आप देखिए कि मतलब जंगल का जानवर आप इसकी फील होगे वो क्या खाता है वहाँ। तो वो एक कनेक्शन जो है ना वो मिस है। तो हमारा जो NGO है ये यही है, ट्राइंग टू एस्टैब्लिश ए कनेक्शन बिटवीन पीपल, चिल्ड्रन एंड नेचर। तो
ये कनाडा लेपर्ड है, ये भी ऐसे किसी रात को मिला था सत्तरी के नज़दीक। तो ये जो है ये मैम हमने कूपर नेट से रेस्क्यू किया था। तो ये इसकी पिंजरे की फ़ोटोग्राफ है। और ये है जी बड़ा मतलब मैं हिस्टोरिक भी कहता हूँ और अपना शिव कुमार बटालवी जी का शिकरा सबको मैं बताइए, सबको मैं बताता हूँ कि जो भी कोई पोएट बहुत लेवल अचीव करता है ना, वो अपने सब्जेक्ट के साथ बहुत, जैसे मैं अपने सब्जेक्ट के साथ बहुत मिक्सअप हूँ। तो जो शिकरा फीमेल होती है, ये एक ही बर्ड है जो जिसमें फीमेल बड़ी होती है और मेल छोटा होता है। और राजस्थान की जो औरतें हैं इसे शिकार करने के लिए पुराने समय में पालती थी। और इसके बारे में शिव कुमार बटालवी ने लिखा, माए नी माए में शिकरा यार बनाया। कहता चूरी कुट्टा चूरी पावा ते वो खांदा नहीं, असन दिल दा मांस खवाया। मैं पोइट्री को बिल्कुल लाइक नहीं करता था, लेकिन फिर मैंने जब समझा चूरी कुट्टा तो खांदा नहीं, मैं दिल दा मांस खवाया कि ये जो शिकरा है ना, ये अपने मालिक के लिए भी अगर बर्ड पकड़ता था उसका सबसे पहले दिल खाता है, बाकी सब छोड़ देता है। फिर वो कहता एक उड़ारी उन्हें ऐसी मारी तो बुढ़वत नहीं ना आया। तो उसका ये है कि ये 2 साल मालिक के साथ रहेगा, लेकिन उसका पता कोई नहीं है कि हंट के लिए गया वापस आएगा या नहीं आएगा। तो थे तो वो पोइट, लेकिन एक ऑर्निथोलॉजी की इतनी डेप्थ बीइंग ए पोइट वो यही बताती है कि जो भी बंदे का जो सब्जेक्ट है ना, चाहे फाइन है कुछ भी, वो सब्जेक्ट के साथ बिल्कुल मिक्सअप हो जाते हैं। ये नुथैच है, ये राजस्थान से मेनली माइग्रेट करता है, बहुत फास्ट मूव करता है। इसकी जो 270 डिग्री इसकी गर्दन जो मुड़ जाती है उल्टी तरह। और ये है रूफस बैलेट नुथैच, और इसका जो पंजाबी नेम है बड़ा इंटरेस्टिंग है जी, सिरी। तो शायद हमारे बुजुर्गों ने इसलिए रखा हुआ कि सिर बहुत घुमाता है, वेरी हार्ड टू कैप्चर। सिरी आइए सर आगे चलते हैं। एक टर्नल माइग्रेटरी है हिमालय से, फुलवस ब्रेस्टेड वुडपेकर। और ये एक बहुत अच्छी फाइंड है। जब मैंने इसको IUCN पर भेजा था तो उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया कि डॉक्टर साहब आपका रिकॉर्ड गलत है। लेकिन फिर मैंने उनको बहुत सारे शॉट भेजे। मैंने कहा मैंने कोई ऐसे नहीं फ्रेम किया, मेरे पास क्योंकि एक फ़ोटो आती है, सर भी मैम बर्ड फोटोग्राफी के बहुत अच्छे मतलब माहिर हैं। और जब भी हम फोटो खींचते हैं उसमें 50-60 शॉट तो ले ही लेते हैं। फिर मैंने सारे शॉट भेजे, देन मैं रिकमेंड कि हाँ वहीं पर होगा। और उसके बाद मैं बताता हूँ, ये मैम ओरिएंटल वाइट आई और पंजाबी नेम है सुनखी। वेरी ब्यूटीफुल बर्ड, और दिखने को ही लगता है कि जैसे बिल्कुल ब्यूटी पार्लर से भी आई हो। और दिस इज द क्लिक ऑफ 29 जून 2018 एट ऑलमोस्ट 1:30 एट द नाइट और इन द मॉर्निंग, वेरी मॉर्निंग। और ये मैम अपनी गाड़ी के 30 जून को मेरा बर्थडे होता है और इसको 1.5 साल लगाया मैंने कैप्चर करने के लिए। और उस दिन मैं ब्लेस हुआ, रेंज अफसर थे रामदास जी, उनके साथ मतलब जी हमें सड़क पर बैठी मिल गई। 100 मीटर गाड़ी खड़ी की पहले पीछे, फिर गाड़ी की लाइट से मैं उसके साथ आगे बढ़ा, 20 मीटर तक पीछे फिर खड़ा, 12 फीट तक क्रॉल करके गया और इसका क्लिक किया। और इसकी स्केयर आई है, स्केयर आई सबको पता है, लेकिन ये सिर्फ रात को ही खुलती जब इसके ऊपर पूरी लाइट पड़े। दिन में बहुत बर्ड कैप्चर हो जाता है, लेकिन इसकी आई नहीं खुलती है। और ये भी मैम अभी तो वैसे काफ़ी जगह पर इसकी इंडियन नाइट जार है, वो रेजिडेंट है। ये है स्वाना नाइट जार, तो साउथ अफ्रीका से माइग्रेट करती है। और ये वल्चर जो हम पहले बहुत देखते थे, डिक्लोफेनेक की वजह से सारे खत्म हुए, लेकिन जो खत्म हुए वो वाली प्रजाति अभी नहीं है यूरेशियन वल्चर की, ये हिमालयन वल्चर है। और ये जो प्राला है, ये है अपना जो पंचकूला वल्चर ब्रीडिंग सेंटर है, उनकी बहुत हेल्प है। और अब ये हमारी पहाड़ों में वल्चर बहुत ज़्यादा है। और मैं एक बात बताना चाहता हूँ, जब वहाँ के डॉक्टर साहब मेरा टाइप हुआ था, उन्होंने कहा था कि डॉक्टर साहब आप ना वो हड्डा रेडी टाइप वहाँ बनाइए। तो मैंने डिपार्टमेंट को बोला, वो कहते कौन करेगा, अच्छा नहीं, बल्चर के बारे में बताना चाहूँगा। हाँ। पठानकोट में हमने एक रेस्टोरेंट खोला है, बल्चर रेस्टोरेंट बोलते हैं इसको। धार में तो बेसिकली हाँ, धार कला में वहाँ पे। तो बेसिकली उसमें ये है कि जो हड्डा रोड़ी से जो जानवर मर जाते हैं, वो हमारे एक लैब है, उसमें लैब में डाइक्लोफेनाक के उनके मीट का टेस्टिंग कर लेते हैं। अगर उसमें डाइक्लोफेनाक नहीं है तो फिर एक प्लेटफॉर्म बनाया, 2-3 प्लेटफॉर्म बनाए, तो वहाँ पे जाकर वो एनिमल्स को कार्कस ऐसे रख देते हैं। तो उसमें जो 3 हमारे एक्सटिंक्ट बर्ड्स हैं वो अब आना शुरू हो गए हैं वल्चर से। हाँ, तो ये बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट चल रहा है। बीच में भी रुक गया था, अभी पता नहीं अभी स्टार्ट किया कि नहीं, दोबारा किया है, तो तो इसकी वो मैं चल आपको गया। रिसर्च बताता हूँ। स्पेनिश लोगों ने किया, मेरे पास डॉक्यूमेंटेड है। 1994 से 2006 तक जो वल्चर का डिक्लाइन हुआ, उसकी वजह से इंडियन गवर्नमेंट को $30 अरब का घाटा हुआ। और वो कैसे हुआ? क्योंकि वल्चर खत्म हुए, तो जितने भी डिक्लोफेनिक वाले वो जानवर थे वो सारे खाए डॉग्स ने। और जो डॉग्स थे वो इतने ज़्यादा हार्मफुल हो गए कि उन्होंने बच्चों को खाना शुरू कर दिया।
रेबीज के केस बढ़ गए और इसकी पूरी एक स्टडी है, 200 पेज का वो डॉक्यूमेंट है जो मेरे पास है। रोडेंट्स का भी है, चूहे का भी है। हाँ जी बिल्कुल मैम, रोडेंट्स का भी है। और एक मैं यहाँ पर इसलिए वेटनरी यूज में डाइक्लोफेनाक को बैन भी कर दिया गवर्नमेंट बैन भी कर दी, लेकिन ने। यहाँ वो बैन वाली चीजें भी ना 2 नंबर में। हाँ चलो वो तो हो जाती है, बट यूज तो कम हो गया होगा। हाँ कम तो है, कम है, चोरी छुपे चलो जो भी ह्यूमन यूज के वाले कर देते हैं जैसे अभी वेटरियंस। राउंड अप है, राउंड अप का लिवर के ऊपर कितना निकला है, लेकिन राउंड अप कितनी धड़ल्ले से बिक रही थी, हम बहुत बाद में जानते हैं। एक्चुअली इसमें डाइक्लोफेनाक से इनका किडनी फेलियर का बहुत ज्यादा है। हाँ जी हाँ जी करती है इस करके वो मर गए ज्यादा। लोग घास मारने के लिए वो राउंड अप मार रहे हैं। आइए सर, लास्ट स्लाइड है इधर। जैकोबिन कुक्कू मैम, पपीहा। तो पपीहा सबने सुना है जी, गाने भी बहुत है पपीहा जब बबीहा के ऊपर। और ये साउथ अफ्रीका के बर्ड है जी, इसने हमें हमारे यहाँ पर आना है जी मई एंड वीक। और जैसे हम कहते हैं पपीहा अमृत वेले बोले हैं, वो तो चलो बोलता ही है, सारे पक्षी बोलते हैं, लेकिन इसको क्यों कहा गया, इसकी आवाज़ बहुत मेलोडियस है। और दूसरा यहाँ पर ना बड़ी मिक्स भी थी कि इसके सर पर छेक होता है, पहले स्वाति दूध पीता है। एक्चुअली स्वाति दूध नहीं पीता, इसके बोलने से बारिश नहीं होती है, ये आता ही तब है जब बारिश होने वाली है। और जो इसके सिर के ऊपर चोंच वाली बात है, वो जैसे ये क्रेस्ट है ना, दूर से अगर देखें तो बहुत नज़दीक में, दूर से देखेंगे तो ऐसे लगता है कि सर पर चोंच है। तो जो जैकोबिन कुक्कू है, इसलिए भी साउथ अफ्रीकन बर्ड है। और ये भी जैसे हम कोयल है, जब कौआ है, कोयल कौए के घर में अंडे देती है, तो वो पैरासिटिक उसको हम बोलते हैं कि उसको, मतलब कौआ इतना इंटेलिजेंट है लेकिन कोयल उसको ना धोखा दे देती है। ये जो बर्ड है इसकी भी स्पेशलिटी यही है कि ये अपना घोंसला नहीं बनाता, आता वहाँ से अपनी ब्रीड करने के लिए है। लेकिन ये जंगल सेरडी, एक जंगल बैबलर एक बर्ड है, पंजाबी नेम है सेरडी, तो उसके घोंसले में ये अपने अंडे देता है। तो ये राजस्थान वो हाथ पड़ गए, लेकिन जंगल में पकड़ के कोई लर्निंग नहीं है। वहाँ पर तो वो माँ बाप को देखते हैं और सीखते हैं, देखते हैं और सीखते हैं। यही रीज़न मैं कई बार बोलता हूँ कि हमारे यहाँ झूठ बोलने का स्कूल नहीं है, ठगी मारने की यूनिवर्सिटी नहीं है, धोखा देने का कोई भी मतलब कि कोई भी एकेडमिक इंस्टीट्यूशन नहीं है, लेकिन ये सारा कुछ चल रहा है क्योंकि हम जो बोलते हैं वो अच्छी अच्छी बातें बोलते हैं, लेकिन जो हम उनको दिखाते हैं ना, वो सारा कुछ यही दिखाते हैं। इसलिए बच्चे जो देखते हैं उसको ज़्यादा सीखते हैं। तो लर्न थ्रू एक्सपीरियंस। ये जो ना किंगफिशर है, जिसको वैसे बीयर वालों ने इसका ब्रांड बना लिया है पूरा, तो एक कॉमन है, लेकिन जो कॉमन बर्ड है, जो जिनका नाम कॉमन है वो यहाँ पंजाब में अनकॉमन है। जो वाइट ब्रेस्टेड है, हाँ वाइट ब्रेस्टेड वो कॉमन है, लेकिन ये कॉमन किंगफिशर है, बट ये पंजाब में अनकॉमन है। बड़ा हार्ड है इसको कैप्चर करना, बहुत छोटा सा बर्ड होता है। ये जो है स्पेक्टर्ड पिकुलेट, इसका पंजाबी नाम मुझे पता नहीं चला। ये वैसे मैंने फ़ोटो खींची है हिमाचल में, और लेकिन मैंने देरी में इसको स्पॉट किया, वहाँ भी मैंने कैप्चर किया है। इसका नाम भी मैम मदरहुड है। और ये जो फोटो है फेब 2018 में वर्ल्ड की 25 बेस्ट फोटोग्राफ में से नेशनल ज्योग्राफी चैनल के ऊपर 22वें नंबर पर आई थी। सो दिस इज स्पेक्टर्ड पिकुलेट। तो ये था छोटा सा पक्षियों का, जानवरों का संसार। मैं एक बात कहता हूँ कि मैं पीएचडी के दौरान मेरी लॉन्ग वॉल की रजिस्ट्रेशन और आईआईटी रुड़की का काम है, और मैं हमेशा कहता हूँ, कहते हैं आप रोज़ जाते हो, आप थकते नहीं हो। मेरे लिए नेचर जो है ना सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, और जो मैंने इससे सीखा वो मैं आज तक किताबों में नहीं देख पाया। तो आप सबका जो स्टे है यहाँ शुभ, मैं भी आपके साथ ही रहूँ, मैं तो बहुत बार रहा हूँ, लेकिन एक मेरी सबको रिक्वेस्ट है कि हम यहाँ पर एंजॉय करने के लिए आए हैं। थोड़ा बहुत अगर 19-21 हो गया तो भाई को माफ़ कर देना, ठीक है ना। बस ये है कि कोऑपरेशन इज़ द की ऑफ द नेचर। तो और भी बहुत कुछ है, लेकिन समय नहीं था, बड़ी भागदौड़ के साथ सारा किया। जंगलों में अगर मेरे साथ जाएंगे, कैमरा मेरे साथ होता है, तो आपको और डेप्थ में पता नहीं क्या ब्लेस होगी। कल मॉर्निंग में जो भी यहाँ पे रुकेंगे आपके साथ जाएंगे, तो जी, पूरा जी। ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप सबको शेयर कीजिए। और मैं जो मेरी सबसे बड़ी अचीवमेंट, मुझे लोग पूछते हैं सर कौन सी फोटो क्या अचीवमेंट है, मैं कहता नहीं, मेरी मेडिटेशन, ध्यान, सबर आ गया ना, वो सबसे बड़ी अचीवमेंट है। और नेचर के साथ कनेक्ट करने के लिए बहुत सी पोइट्री जो उतरी है, जो मैं आपको नाइट बैंड के साथ साथ वहाँ पर रूबरू करूँगा। और लोग कहते हैं कि मैं कवि हो गया हूँ, लोग कहते हैं कि मैं कवि हो गया हूँ, पर मैं तो यारों प्रकृति की छवि हो गया हूँ। लोग कहते हैं कि आप कविता सुनाते हो, लोग कहते हैं मैं कविता सुनाता हूँ, मैं कहता हूँ कविता तो दूर कहीं पीछे से आती है, मैं तो बस बीच में से हट जाता हूँ। बच्चे आ गए।
ये ऑटर्स है, जिसको हिंदी में उद बिलाव बोलते हैं। ये हमारी हरीके में ये काफी सो लेडीज एंड जेंटलमैन, सॉरी आप करें एंजॉय, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि आज हमारे बीच बड़ा ही अच्छा बैंड आया दोस्तों, FK बैंड, जो आज की शाम चाहे जितना भी टाइम है हमारे पास वो हमें एंजॉय करेंगे, एंटरटेन करेंगे कुछ स्पेशल सॉन्ग्स के साथ। और गुफ्तगू के साथ साथ आपका ध्यान इधर भी रहना चाहिए। और इतने पंजाबी चाहिए, थोड़ा इधर अग भी लग गई है, जे किसी ਨੂੰ ठंड लगे ਤੁਸੀਂ सेक सकते हो आगे, मैं ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ लागे, क्योंकि ਅਸੀਂ ਨਾਰਾ ਫੋਰੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਕਲੀਅਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਸੋ ਐਕਸਾਈਟਡ ਐਕਚੁਅਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਇਦਾਂ ਅੱਛਾ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨ ਦਾ। ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਔਰ ਅੰਦਰ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਅਸੀਂ ਫੁਟੇਜ ਵੇਖੀ ਹੈ। ਔਰ ਸੱਚੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਇਮੇਜਿਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਦੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਲੱਗੇ ਰਹੇ, ਆਪਣੇ ਫੈਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਲੱਗੇ, ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਲੱਗੇ ਰਹੇ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਦੇਣ ਆ। ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਦਰਖਤ, ਹਰ ਇੱਕ ਪੇੜ, ਹਰ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ, ਈਵਨ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਬ੍ਰਹਮਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ એનર્ਜੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੋ ਕ੍ਰੀਏਟਰ ਹੈ ਪੂਰੇ ਬ੍ਰਹਮਾਂਡ ਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਤ-ਸ਼ਤ ਨਮਨ ਕਰਦਾ, ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਥ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਸ਼ਾਮ enjoy ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। So without any further delay, a special song which I want to dedicate to you from my brothers ਜੋ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਔਰ ਪਾਰਟੀ ਡਬਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਜ਼ੋਇਆ ਮੈਮ ਜੀ ਦਾ ਬਰਥਡੇ ਵੀ ਹੈ, ਐਂਡ ਇੱਕ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਜਿਹਾ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਦੋਸਤੋ ਮੈਂ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਕਰ ਹੀ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡੇ ਅਮਰ ਸਰ ਜੋ ਸਾਡੇ ਚਸਕਾ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਓਨਰ ਨੇ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਾਂਭੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੇਕ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ। ਤਾਲੀਆਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪਲੀਜ਼ ਐਵਰੀਵਨ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਡੀਸੀ ਮੈਮ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ। ਮਿਲਦੇ ਫਿਲਹਾਲ ਕੁਝ ਗਾਣੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ। ਔਰ ਸਾਡੇ FK ਬੈਂਡ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਸੋ आप बिल्कुल बैठे, बिल्कुल ना हो स्टैंड इन फ्रंट ऑफ यू द ब्यूटीफुल सॉन्ग FK बैंड। लेडीज एंड जेंटलमैन, सर नेचर फेस्ट के अंदर आज क्या क्या एक्टिविटी जो है सारी वो ऑर्गेनाइज करवाई गई थी? देखिए, नेचर फेस्ट अब जैसे आपको पता है 1 तारीख से 5 तारीख का ऑर्गेनाइज़ किया हमने।
और 2 दिन चूँकि बारिश के कारण थोड़ा कम हो गया, लेकिन थर्ड डे कल काफ़ी एक्टिविटीज़ है, कल्चरल प्रोग्राम हुआ। आज बेसिकली नेचर फेस्ट कराने का मुख्य उद्देश्य ये है कि लोगों को नेचर के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दें, इन्वायरमेंट के बारे में दें, बायोडाइवर्सिटी के बारे में दें, फॉरेस्ट के बारे में दें, वाइल्ड लाइफ के बारे में दें, क्योंकि जब तक लोगों को पता नहीं होगा इसका इंपॉर्टेंस, तब तक वो कंजर्वेशन की भावना नहीं आएगी। तो इसका इसी उद्देश्य को लेकर हमने ये फेस्ट ऑर्गेनाइज़ किया था। फर्स्ट डे कल्चरल प्रोग्राम आपने देखा, जितने सारे स्टॉल्स लगे हैं, फूड के भी हैं, इवन फॉरेस्ट प्रोड्यूस भी काफ़ी हैं। तो आज हमारी एडवेंचर स्पोर्ट्स का मेन था, जिसमें जंगल सफारी। आज हम सारे टूरिस्ट को, जितने नेचर इंथुसियास्ट हैं, उनको लेके थाना डैम गए, डेरिया गए, वहाँ पे ट्रैकिंग करा, ऑफ रोडिंग करी, वहाँ पे बोटिंग करा। और अभी शाम का जो प्रोग्राम है वो हमारा नारा डैम है। इस नारे डैम को हमारे गेस्ट हाउस है, उसको हम एज ए कैंपिंग साइट उसको हम प्रमोट करना चाह रहे हैं। तो आज हमारे करीब से 50 लोग वहाँ पे कैंप, टेम्पररी कैंप्स हमने ऑर्गेनाइज़ करवाया है, वहाँ पे रहेंगे। इवनिंग में कल्चरल प्रोग्राम्स होगा, मॉर्निंग में फिर ट्रैकिंग होगी, 10 किलोमीटर की ट्रैकिंग है, और थाना में उसके बाद से सारे जंगल का फील आएगा बेसिकली। और काफ़ी लोग इंटरेस्टेड, चंडीगढ़ से भी लोग आए हैं। तो ये सारी चीज़ आज का प्रोग्राम है। कल हमारा चौहाल डैम का है, वहाँ पे भी बोटिंग है, कैफ़े जोन है, इंटरप्रिटेशन सेंटर है, ये सारी चीज़ों का कल है। तो एक ओवरऑल एक हम नेचर प्रोडक्ट दे रहे हैं सारे होशियारपुर के लोगों को, ये सराउंडिंग लोगों को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा नेचर के बारे में जानें और उसका इंपॉर्टेंस को समझें, उसको कंजर्व करें। सर, हॉट एयर बैलून और पैराग्लाइडिंग का लोग लगातार भी आनंद ले पाएंगे क्या होशियारपुर में? ऐसा भी कुछ प्रावधान किया जाएगा? जी, अभी इनिशियली देखिए पैराग्लाइडिंग हमने 3 महीने का ATC आदमपुर से परमिशन ले लिया है। तो इस नेचर फेस्ट के बाद भी जब भी अगर कोई डिमांड होगी तो डिमांड टू डिमांड बेसिस वो हम कोशिश करेंगे कि वीकेंड्स पे उसको लगवाएं, ताकि यहाँ के लोगों को मतलब हिमाचल या बीड़ बिलिंग जाना ना पड़े, होशियारपुर में ये सारी फैसिलिटीज़ मिल सके। तो होशियारपुर के लोगों का कैसा रुझान देखते हैं आप नेचर फेस्ट के अंदर? लोग बढ़ चढ़कर किस तरह से हिस्से ले पा रहे हैं? जो जिला प्रशासन की ओर से जो उपराला किया गया या फिर जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की ओर से नेचर के प्रति जो आप लोगों को बताना चाहते थे, कितना सफल होते देख रहे हैं खुद को? देखिए, जो कल का रिस्पांस है, जो आज का रिस्पांस है, काफ़ी ओवरवेलमिंग रिस्पांस है, और मतलब जितना हमने एक्सपेक्ट नहीं किया उससे ज़्यादा रिस्पांस मिल रहा है। तो ये बहुत अच्छा है कि चलो लोग यहाँ पे आए, नेचर के बारे में समझ रहे हैं, उसको अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। तो मुझे लगता है आने वाले टाइम पे हम इस तरह के और भी इवेंट्स ऑर्गेनाइज कराएंगे, ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा नेचर के बारे में जानकारी मिल सके। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू सो मच। ठीक है जी, थैंक यू ऑल।